الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کو جو شرف ملا ہے وہ عقل اور سمجھ ہی کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی عقل عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں جو بھی نئی نئی ضرورتیں پیدا ہوں ان کے حل کے لیے یہ ایجادات کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایجاد کرتا ہے، اور دین میں جو مسائل پیش ہے ان کے لیے یہ اجتہاد کرتا ہے۔ دنیا میں ایجاد اور دین میں، لیکن سارے انسان ایجاد نہیں کرتے۔ ایک نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیا، باقی انسان اس سے فائدہ اٹھا لیتے۔ اسی طرح دین میں بھی سارے مسلمان اجتہاد نہیں کرتے۔ ائمہ مجتہدین نے اجتہاد کر لیا اور باقی ان کے اجتہاد سے فائدہ اٹھا لیتے۔ بات سمجھانے کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی آنکھ کس نے پیدا کی؟ کان کس نے پیدا کیا؟ زبان کس نے پیدا کی؟ جہاز کس نے بنایا؟ انسان نے۔ ریل گاڑی کس نے بنائی؟ اس کو موجد کہتے ہیں، خالق نہیں کہتے۔ اس کو موجد کہتے ہیں، خالق نہیں کہتے۔ تو ایک انسان ایجاد کرے، باقی اس ایجاد سے فائدہ اٹھا لے، اور ایک تیسرا نکل آئے کہ نہ تو ایجاد کر سکے نہ فائدہ اٹھائے، جہاز کو توڑنا شروع کر دے۔ تین قسم کے آدمی ہوں گے نا۔ اسی لیے قرآن پاک میں تین ہی قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کبھی اہل ذکر کہتا ہے کہ جن کو دین خوب یاد ہے، کبھی اہل استنباط کہتا ہے جو کتاب و سنت کی تہ میں غوطہ نکال کر اس سے موتی لگا کر موتی نکال سکتے ہیں، کبھی ان کو اولو الابصار کہتا ہے کہ یہ صاحب بصیرت لوگ ہیں، کبھی ان کو قرآن فقہا کے لفظ سے یاد کرتا ہے لیتفقہوا فی الدین۔ ان لوگوں کو جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، ان کو قرآن نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ،
کہ اے بابصیرت لوگوں قیاس کرو، اجتہاد کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو کچھ لوگ اجتہاد کر سکتے ہیں، اب باقی کیا کریں جو نہیں کر سکتے؟ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ جو اجتہاد کر سکتے ہیں ان کو مجتہد کہتے ہیں، جو ان کے اجتہاد سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں ان کو مقلد کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو نہ خود کرے نہ کرنے دے، کہتے نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے، ان کا ذکر قرآن میں آیا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہ خود عقل ہے نہ کچھ، نہ کسی عقل والے کی سننے کو تیار ہے۔ تو دیکھیے جس طرح اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل دی، اس عقل سے اس نے اپنی بہت سی ضروریات کا حل نکال لیا۔ پیدا کسی چیز کو نہیں کیا، خدا کی ہی پیدا کی ہی چیزوں کو ملا کر ایک ایجاد کر دیا۔ اسی طریقے سے جب دینی مسائل پھیلتے ہیں تو ان کے حل کے طریقے کا نام اجتہاد ہے۔ اب یہ کہنا کہ بس جہاں اللہ نے جتنا پیدا کیا تھا وہیں ہی رہنا چاہیے، جتنا دیا اس سے آگے نہیں۔ ایک دوست بڑے فخر سے مجھے کہنے لگا کہ ہم تو جتنا اللہ نے دیا اس سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اچھا عجیب آدمی ہے، تو میرے سامنے بیٹھ کر ایسی بات کر رہا ہے۔ جی کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ نے تجھے ننگا پیدا کیا تھا اور بھینس کو بھی ننگا پیدا کیا تھا، وہ واقعی آج تک ننگی پھر رہی ہے، لیکن تو انسانوں کے سیے ہوئے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے۔ تو جہاں خدا نے پیدا کیا تھا وہاں تو بھینس ہے۔ پھر میں نے کہا جہاں اللہ نے گھاس اگایا وہ وہیں چر لیتی ہے، نہ اسے نمک کی ضرورت، نہ مرچ کی ضرورت، نہ لکڑیاں لانے کی ضرورت، نہ آگ تلاش کرنے کی، اور انسان کو 100 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ بیلنے پڑتے ہیں یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ آخر انسانوں نے بھی اس دین کی حفاظت کے لیے، کس چیز کے لیے؟ حفاظت کے لیے اور اس کی تشریح کے لیے کچھ حصہ ڈالا ہے۔ دیکھیے یہ قرآن پاک ہے، کیا حضرت اسی طرح جلد باندھ کر دے گا تھے؟ جی نہیں نا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب مسلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی جو منکر ختم نبوت تھا تو بہت سے حافظ اور قاری شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آ کر عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے کہ اس کو کتابی شکل میں بھی جمع کر دیا جائے۔ اور ابو بکر کیا فرما رہے ہیں؟ علماء حضرات موجود ہیں، میں وہ کام کیوں کروں جو اللہ کے نبی پاک نے نہیں کیا؟ اب جب یہ فرماتے ہیں تو حضرت عمر کوئی آیت پڑھ کے نہیں سناتے کہ نہیں جی فلاں آیت میں ہے کہ جمع کر لینا، کوئی حدیث پاک پڑھ کے نہیں سناتے، وہ کہتے ہیں واللہ خیر، یہ اچھی تھی۔ بار بار جب یہی فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میرا سینہ بھی کھل گیا کہ اچھی تھی۔ اب اس میں جمع میں انسانوں کا دخل ہوا یا نہیں ہوا؟ جو کہتا ہے ابو بکر صدیق نے جمع کا حکم دیا، حضرت عمر نے یا ابو بکر صدیق نے بھی زید بن ثابت کو کوئی آیت نہیں پڑھ کے سنائی، نہ کوئی حدیث پڑھ کے سنائی، امتی کا حکم تھا نا، انہوں نے بلا مطالبہ دلیل مان کر اس قرآن کو جمع کر دیا۔ اب جو کہتا ہے تقلید شرک ہے اس کے لیے تو یہ قرآن پڑھنا شرک ہے، وہ وہی تلاش کرے جو پتوں پر لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پر، وہ ان کا قرآن ہے۔ اور اہل سنت والجماعت جو تقلید کو جائز سمجھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جب یہ حکم دیا
कोई आयत नहीं सुनाई, कोई हदीस नहीं सुनाई, तो कितने सहाबा ने उठकर इनकार किया कि हम ये काम नहीं होने देंगे? किसी ने किया? तमाम सहाबा ने अबू बकर सिद्दीक की इस बात कौल की तकलीद की या नहीं की? एक भी गैर मुकल्लिद नहीं था। हमें कोई नाम बता दें कि फलां ने कहा था कि मैं जमा नहीं होने दूंगा कुरान। किसी ने कहा? क्योंकि अल्लाह के नबी पाक ने जमा। आगे हजरत फारूक आज़म रज़ी का जमाना आया, तरावी में जो कुरान पाक आज तक खत्म होता चला आ रहा है, ये सुन्नत फारूकी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दफा भी तरावी में कुरान पाक मुकम्मल खत्म नहीं फरमाया। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फरमाया कि कुरान खत्म होना चाहिए, उस दिन से किसी सहाबी ने इनकार किया? ताबी ने, तबा ताबी ने, बल्कि ये भी खत्म कर दिए अपनी मस्जिदों में। करते हैं या नहीं जी? करते हैं कुरान या फातिहा? नहीं, वो एक मुझे कह रहा था कि आज हमारा भी खत्म कुरान है। मैंने कहा वो तो कारी साहब का है, आपकी तो सिर्फ फातिहा पीछे पड़ी है, बाकी तो पढ़े नहीं आपने। तो आज दुआ भी यूं ही करना कि या अल्लाह कारी साहब का कुरान और हमारी सिर्फ फातिहा कबूल करना। यही बात होनी चाहिए। तो जल्दी से कहता है नहीं, 113 सूरतें जो इमाम ने पढ़ी थी हमारी तरफ से भी हो गई। तो मैंने कहा 114वीं से क्या गुनाह हो गया कि वो नहीं हुई? अगर वो हो गई तो ये भी हो गई। अब देखिए, फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जो लोग थे वो मुसलमान थे या मुशरिक थे? किसी एक ने इनकार किया कि चूंकि रसूल पाक के जमाना में तरावी में कुरान खत्म नहीं हुआ। अच्छा, कुरान पाक में किसी किसी जगह 13-14 जगह पर सजदा लिखा है, तो क्या करते हैं आप वहां जी? तलावत करते करते वहां कुरान बंद करके सजदा कर लेते हैं ना। और जहां रुकू लिखा है वहां कुरान बंद करके रुकू कर लेते हैं। नहीं, ये बेफायदा ही लिखा हुआ है। उस जहां सजदा लिखा है वहां तो आप सजदा कर लेते हैं ना। तो ये जो रुकू लिखे हुए हैं, ये रुकू तरावियों के लिए लगाए गए। 27वीं को खत्म किया जाए तो 20 तरावी में 20 रुकू रोजाना पढ़े जाएंगे ना। 20 को 27 से ضرب दे 540 बनते हैं। 5 छोटी सूरतें हैं वो जरा ज्यादा बन जाएंगे, लेकिन 540 से कम तो नहीं होना चाहिए ना कुरान। अगर 8 तरावी होती तो 8 रुकू रोज पढ़े जाते ना। तो 30 दिन में, 27 भी छोड़ो, 30 दिन में 240 रुकू पढ़े जाते। समझा रही बात या नहीं? तो भाई ये कुरान 20 तरावी वालों का है, वो हमें वो कुरान ला के दे जो 240 रुकुओं वाला है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो 20 तरावी वालों का है ना। अब सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आ गया। उनके जमाने में बाहर से खतूत आए कि कुरान पाक जो 7 लुगतों पर पढ़ा जा रहा है ये बायस फितना हो रहा है। जैसे हर जबान में कुछ फर्क होता है ना लुगत का, कोई कबर कहता है, कोई गबर कहता है, कोई वली मोहम्मद कहता है, कोई वली मोहम्मद कहता है, वाव को बे बोलते हैं एक ही जबान में। पंजाबी में, अरबी में भी 7 लुगात थी। तो हर आदमी की जबान पर कुरैश की लुगत नहीं चल रही थी। रसूल पाक ने दुआएं मांगी, बुखारी शरीफ में है कि या अल्लाह 7 लुगतों पर कुरान पाक पढ़ने की इजाजत दे दे। अल्लाह ने इजाजत दे दी। हजूर पाक के जमाने में कितने लुगतों पर पढ़ा जाता रहा? 7 लुगतों पर। अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी 7 लुगतों पर, अब हजरत उमर के जमाने में भी, और हजरत उस्मान रजी के जमाने में जब बाहर से शिकायतें आई तो सिर्फ लुगते कुरैश बाकी रखी गई, बाकी लुगते खत्म कर दी गई। इसलिए दोबारा जमा कुरान की जरूरत पड़ी कि अब सिर्फ लुगते कुरैश पर जमा किया जाए।
अब हजरत दुआएं करके 7 नुक्ते मंजूर करा रहे हैं, लेकिन सहाबा कहते हैं कि अब ये फितने का बायस बन गई है, इसलिए सिर्फ नुक्ते कुरैश जो असल है इसी पर कुरान की तिलावत होगी। तो किसी सहाबी ने हजरत उस्मान से इख्तलाफ किया, उन्होंने की आयत हदीस पढ़ी इस बारे में? नहीं। तो सब ने हजरत उस्मान की तकलीफ की। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू का जमाना आ गया, उन्होंने नहव के कवायद वगैरह लिखवाए ताकि इराबी गलतियां न हों और इराब लगवा दिए जाए कुरान और हदीस किताब कुरान पर। पहले ये नुक्ते और जबर जेर वगैरह नहीं थे, तो जब ये इल्म नहव मुरतब होना शुरू हुआ तो किसी सहाबी ने इनकार किया, हजरत अली ने कोई आयत या हदीस सुनाई। अब आप जो रात दिन कुरान पाक की तिलावत करते हैं, क्या आपको हर जबर की दलील याद है कि यहाँ जबर क्यों है, यहाँ जेर क्यों है, यहाँ पेश क्यों है? तो आपका क्या ख्याल है कि ये कुरान की जबरें जेरें बगैर दलील के लगी हुई हैं? नहीं, आपको पक्का यकीन है कि एक जबर भी बगैर दलील के लगी हुई नहीं, एक जेर भी बगैर दलील के लगी हुई नहीं, लेकिन उनकी दलीलें उलमा को याद है, अवाम को याद। अब अवाम को कुरान पढ़ने की इजाजत है या नहीं? अगर तकलीद शिरक है तो हर जबर पर एक शिरक आ जाएगा, क्योंकि आपको दलील याद नहीं। हर जेर पर एक शिरक, हर पेश पर एक शिरक, हर जज़म पर एक शिरक, हर शद पर 2 शिरक, क्योंकि डबल लफ्ज होता है ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पढ़ते इस यकीन से कि हमें अल्लाह अजर अता फरमाएंगे, और तकलीद जायज है, तकलीद जायज है। और अगर कोई तकलीद को शिरक करता है तो पूरा कुरान नहीं, पूरा पारा भी नहीं, एक रुकू पढ़ते पढ़ते आदमी इतने शिरकों में डूब जाएगा कि शायद फरिश्ते भी तलाश करते हुए आजिज आ जाए, और वो भी छोड़ जाए कि अच्छा जहां डूबा है वहीं रहे। वो कहते कि पोस्ती था, नशे में बैठा, उसका लड़का कुएं में गिर गया, उसने आवाज दी अब्बा जी मैं कुएं में गिर गया। उसने कहा अच्छा बेटा जहां रहो खुश रहो। तो शायद फरिश्ते भी ये कहकर चले जाए कि अच्छा जहां रहो खुश रहो, शिरकों में डूबे हुए। तो ये कुरान पाक जो तरावी में खत्म होता है, ये कुरान पाक जो हजरत अबू बकर ने जमा कराया, ये कुरान जो लुग़ते कुरैश पर खालिस जमा किया गया, ये कुरान पाक जिस पर उम्मत ने बाद में एराब और नकात लगाए, ये उनका है जो तकलीद को जायज कहते हैं। जो तकलीद को शिरक कहते हैं उनको तो ये कुरान पढ़ने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुशरिक जरूर बनना है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसानों में से मुसलमान बनाया और मुसलमानों में से अहले सुन्नत वल जमात बनाया। तो मैं एक जगह यही बात अर्ज कर रहा था कि भाई ये तकलीद जायज है। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे जी जब कुरान ने मना कर दिया है तकलीद को तो फिर? अच्छा, ये सबीलुर रसूल मौलाना सादिक साहब सियालकोटी की किताब लेकर आया मेरे पास कि उन्होंने लिखा है कि तकलीद को कुरान ने मना किया है। वइज़ा क़ील मुत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अलफ़ैना अलैहि आबाना, ये सफ़ा 356 है। वइज़ा क़ील तालू इला मा अंज़लल्लाहु इलर रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना। ये 2 आयतें उन्होंने लिखी है कि अपने बाप दादों की तकलीद को अल्लाह ने बुरा करार दिया है। इत्तिबा का माना तकलीद खुद कर दिया है यहां। मैंने उसे कहा कि तूने इस किताब का तो मुतालिया कर लिया, कुरान खोल पर देखा कि आयत पूरी लिखी है या आधी लिखी है? आखिर आप में हाफिज साहबान बैठे होंगे ना। अब उसने जो आयत लिखी है मा अलफ़ैना अलैहि आबाना तक लिखी है, आगे है अवलौ काना आबाहुम ला याकिलून शैअन वला यहतदून। कुरान खोल कर ये किताब सामने रख कर देख ले, आधी आयत लिखी है या पूरी लिखी है? दूसरी आयत भी पूरी नहीं लिखी। उसमें क्या लिखा है? आगे था
मा वजदना अलैहि आबाना, यहाँ तक लिखा है अवलौ काना आबाहुम ला यालमूना शैअन वला यहतदून। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बात मुकम्मल बयान की थी कि वो जो उनकी तकलीफ से जिनके रोका गया है ना, उनका गुनाह बाप होना नहीं था। ये किसी के इख्तियार में नहीं कि कोई किसी का बाप बन जाए, तो उसके इख्तियार में है ना। उनका गुनाह बाप होना नहीं था। कुरान ने उनका जुर्म बताया है कि उनके पीछे क्यों नहीं लगना, तकलीफ क्यों नहीं करनी। वो बे इल्म थे, बेदीन थे, बेअकल थे। क्या बताया? बेदीन थे, बे इल्म थे, बेअकल थे। अब इस आयत को इमामों पर फिट करना, तो क्या वाकई चारों इमाम बेदीन थे? चारों इमाम बेअकल थे? चारों इमाम बेइल्म थे? कुरान ने जो वजह बयान की है तकलीद उनकी ना करने की, वो उनका बेदीन होना है, बेइल्म होना है, बेअकल होना है, और हुक्म हमेशा कैद पर होता है। अब ये कैसा धोखा है, जरा मिसाल से समझे। मैं आपको कहता हूं झूठे नबी को न मानना। क्या कहता हूं? ये बात मैं सही कह रहा हूं, गलत है? ईमान की बात है ना। एक आदमी यही बात जाकर बयान करता है और कहता है कि वो कहता था नबी को न मानना। नबी को कौन सा लफ्ज छोड़ दिया उसने? झूठे का। न मानने का हुक्म ही झूठे होने की वजह से था ना। न मानने का हुक्म ये नहीं था कि नबी को न मानना, न मानने का हुक्म झूठे होने की वजह से था ना। अब मैं आपसे कहूं कि झूठी हदीस न मानना, झूठी हदीस न मानना, कोई आगे बयान करे वो कहता था हदीस ही न मानना, तो उसने मेरी बात सही पहुंचाई या मुझ पर झूठ बोला? क्योंकि न मानने का हुक्म जो है वो उसके झूठे होने की वजह से। जिनकी तकलीफ से रोका गया है वो बेदीन थे, बेइल्म थे, बेअकल थे। अब उसको छोड़ दिया जो असल हुक्म की वजह थी। तो जो अल्लाह के साथ भी धोखा करे, खुदा के कुरान के साथ भी, हम कहते ठीक है, हम भी यही कहते हैं कि बेदीनों की तकलीद न करो। कहते हैं या नहीं कहते? बेइल्मों की तकलीद, बेअकलों की तकलीद, इत्तिबा का लफ्ज है ना यहाँ, बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाना। अब देखिए बेदीनों की तकलीद से मना किया, लेकिन किसी का हुक्म भी दिया या नहीं? इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। अल्लाह की इत्तिबा का हुक्म दिया। तो अल्लाह की इत्तिबा किस तरह होती है? जिस तरह फरिश्तों ने की थी, हुक्म सुना सजदा करो, और बगैर दलील मांगे सजदे में गिर गए थे, या उस तरह जिस तरह दूसरा अकड़ गया था। क्या ख्याल है? अल्लाह ने हुक्म दिया ना सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, फरिश्तों ने किसी दलील का मुतालबा नहीं किया, हुक्म सुनते ही बिला मुतालबा दलील के जी वजह क्या है सजदा करने की, ना पूछी कुछ नहीं, सजदे में गिर गए और तकलीद का हार अपने गले में डाल लिया। और वो अकड़ गया कि मैं तो तकलीद का हार नहीं पहनता, तो अल्लाह को गला अच्छा, खाली अच्छा नहीं लगता। फरमाया अच्छा फिर लानत का तौक डाल के निकाल दो, फखरुज फइन्नका रजीम। इसी तरह कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आगे फत्तबिऊनी, रसूल की इत्तिबा का हुक्म आया या नहीं आया? तो रसूल की इत्तिबा किस तरह की जाती? हुक्म दे तो फौरन अमल शुरू कर दे, या सामने से चूंचरा की जाए? उसके बाद इजमा की इत्तिबा का हुक्म आया, वमन युशाकिकिर रसूला मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबे गैर सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व सात मसीरा। सारे मोमिनों की जो राह है, जिसको इजमा उम्मत कहते हैं, इसकी इत्तिबा भी करनी है, तकलीद भी करनी है, ताबेदारी भी। चौथे नंबर पर है वत्तबे सबील मन अनाब इलैया,
اور तकलीद कर उस शख्स के मजहब की जो मेरी तरफ रजू करता है। अब मुल्हिद का जब मसला पूछा जाता है तो वो अल्लाह रसूल की तरफ रजू करता है। वो एक वाकया शायद मैंने पहले भी किसी जगह सुनाया था, यहीं शहर में, दोबारा सुनाता हूँ, बात ज़हन में नज़ीम हो जाए। मैं एक जगह गया तो हमारे दोस्तों का जलसा था, बड़ा शोर था कि भाई आओ कुरान हदीस की बातें होगी। ये तुम्हें बहती ज़ेवर सुनाते हैं, हम बुखारी सुनाएंगे आज। ये तुम्हें तालीम इस्लाम सुनाते हैं, हम तुम्हें तिरमिज़ी सुनाएंगे आज। हदीस की बात होगी, मसलक अहल हदीस जिंदाबाद। मैंने 2 लड़कों को भेजा कि उनसे पूछना कि भैंस को अरबी में क्या कहते हैं। क्या पूछना है? ये आपने भी सवाल याद करने और फिर पूछने हैं, अगले महीने मुझे जवाब देना है कि कौन सी हदीस सुनाई उन्होंने। भैंस को क्या कहते हैं अरबी में? जामूस। वो बता देंगे कि अच्छा जी अब कुरान या बुखारी से हमें दिखा दें कि भैंस हलाल है या हराम। क्यों? पहले ये जरूरत हम बहती ज़ेवर से पूरी कर लेते तो उसमें लिखा है कि भैंस हलाल है। फिक़ह की किताब बहती ज़ेवर में लिखा है कि भैंस हलाल है, उसका दूध भी हलाल है, घी भी, मक्खन भी, लस्सी भी। आज आपने फरमा दिया कि बहती ज़ेवर गलत किताब है, छोड़ दो बहती ज़ेवर को, तो हमें सुबह सबसे पहले इसी की जरूरत पड़नी है। दही खाना है, लस्सी पीनी है, दूध पीना है, चाय बनानी है, घी मक्खन, हर चीज की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये हमें कुरान या बुखारी से दिखा दे कि भैंस हलाल है या हराम। जामूस का लफ्ज दिखा दे। तो 2 आदमी उठे कि आप शरारत करने आए हैं। लेकिन नहीं, आप खुद बताएं, आपको जरूरत है सुबह इसकी या नहीं इस मसले की। उनमें एक तो भैंस का दूध बेचता था कि आप जो बेचते हराम बेचते या हलाल, आपको जरूरत है इस मसले की। ये शरारत नहीं, जरूरत है। हाँ, ये बात आप पूछ सकते हैं कि आज से पहले क्यों नहीं पूछा। वो मैंने खुद ही बता दिया कि पहले ये जरूरत हम फिक़ह की किताब से पूरी कर लेते थे। आज पता चला कि फिक़ह गलत है, तो अब हमारी ये जरूरत आप कुरान हदीस से पूरी कर दें। गाली तो नहीं दी रहे कोई। मौलवी साहब ने स्पीकर वाले को इशारा किया कि जरा बंद कर देना। ने स्पीकर बंद कर दिया। उसने कहा कि भी हम जो भैंस को हलाल कहते हैं तो कियास से कहते हैं। देखा, फिर आप 3 मरतबा ऐलान करें कि जलसा अहले कियास का है, अहले हदीस का नहीं। जलसा अहले कियास का है, अहले हदीस का। हम तो ये शोर का सुनकर आए थे कि अहले हदीस का जलसा है, और आप तो अहले कियास निकले। आखिर वो भी लड़के कॉलेज के थे, उन्होंने पूछा जी कियास की कोई इल्लत होती है तो क्या इल्लत, किस पर कियास किया है? कि गाय पर। इल्लत क्या है कि उसकी भी 2 आंखें, इसकी भी 2 आंखें, उसके भी 2 कान, इसके भी 2 कान, उसकी भी 4 टांगे, इसकी भी 4 टांगे, उसका भी 1 मुंह, इसका भी 1 मुंह, उसकी भी 1 दम, इसकी भी 1 दम। कहा कि मौलाना अगर कियास इतना ही सस्ता हो तो ये तो हर आदमी कर सकता है। ये बातें तो कुतिया में भी पाई जाती हैं या नहीं? तो वो भी हलाल हो जाएगी या नहीं? और अगर कियास इसी तरह होता है तो इस किस्म की मुशाबियत तो मेरी बीवी और आपकी बीवी में भी पाई जाती है नहीं? तो मेरी बीवी तो निकाह से हलाल होगी, आपकी मेरे लिए कियास से हलाल हो जाएगी या नहीं? अब वो 2 आदमी उठे, कहा मौलवी साहब बंद कर दो तकरीर, बेइज्जती करवा दी हमारी, बंद कर दो। उसकी तकरीर बंद करवा दी। ये लड़के वापस आ गया जी, वो कियास से जायज कहते हैं। हमने मस्जिद का स्पीकर खोला के भी देखो जलसा अहल हदीस का शुरू हुआ था और है अहले कियास। कल हर हनफिये ने मिले और सलाम करे, या अहले कियास अस्सलाम अलैकुम, या अहले कियास, जब भी मिले अहले कियास अस्सलाम अलैकुम कहना है। उन्होंने सोचा कि ये तो मुसीबत आ जाएगी भाई, हमें रोज अहले कियास कहा करेंगे। दूसरे मौलवी साहब उठे, नहीं नहीं, हदीस है हदीस, भैंस हलाल है। भी सुनाओ। हजरत पाक ने इरशाद फरमाया कि जो जानवर दार से शिकार करता है वो भी हराम है, और जो पंजे से शिकार करता है वो भी हराम है।
भैंस ना डार से शिकार करती है ना पंजे से, इसलिए हलाल है। मसल कैल हदीस जिंदाबाद। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, जरा ये बताओ कि आपका जो गधा है वो डार से शिकार करता है या पंजे से, क्या ख्याल है? वो भी हलाल है या नहीं इस इल्लत की वजह से? तो अल्लाह ने जिस दिन अकल तकसीम की थी, पता नहीं बेचारे कहाँ सोए हुए थे, कहता हाँ बुखारी में है कि गधा, जंगली गधा हलाल है, बुखारी में है कि जंगली गधा। अब मैं स्पीकर पर कह दूंगा भाई सारे गांव वाले सुन रहे हो, मैं कहता हूं भैंस हलाल करो, ये गधा ही हलाल करता जा रहा है। अब मैं स्पीकर पर कह दूंगा भाई सारे गांव वाले सुन रहे हो, मैं कहता हूं भैंस हलाल करो, ये गधा ही हलाल करता जा रहा है। मैं कहता हूं भैंस हलाल करो और ये गधा हलाल करता जा रहा है। फिर उनके दो आदमी खड़े हुए कि मौलवी साहब पिछले साल आप आ गए थे, आके कह गए थे कि घोड़ा हलाल है और सारे हमें घोड़ा ग्रुप वाले कहते हैं। आज आपने गधा हलाल कर दिया है तो उसको हमारी शामत फिर आ जाएगी गरीबों की। तो आप कोई सोच समझ कर बात किया करे, सारी ऐसी बातें नहीं। अब फिर तीसरे मौलवी साहब खड़े हुए, नहीं नहीं हदीस नहीं कियास है। वो कियास क्या है? कियास ये है कि जिस जानवर के खुर चिरे हों, तुम आप खुर कहते हैं, चिरे हुए हों, वो हलाल है। भैंस के भी चिरे हुए हैं, गाय के भी चिरे हुए हलाल। मैंने कहा फिर कभी खंजीरनी के भी देखना, वो भी चिरे हुए हैं, खंजीरनी के भी, तो वो भी हलाल होनी चाहिए। अब आराम से बैठ गया। फिर मैंने बताया कि देखो अब हमें यहां जरूरत होती है फुकहा की। फुकहा ने यही कुरान पाक उठाया, इसमें देखा कि 4 जानवरों का जिक्र आया हलाल में, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी। इन चारों में मुश्तरका इल्लत कौन सी है? जुगाली करना। आप क्या क्या कहते हैं? उगल करना, उगाल करना। तो चूंकि जो भी जानवर जुगाली करता है उसको फुकहा ने हलाल करार दे दिया। अब वो हदीस न भी होती तो आपसे कोई पूछे कि भाई कुत्ता हलाल है, नहीं वो जुगाली नहीं करता। भैंस हलाल है, हाँ जी जुगाली करती है। अब देखो सारे चौपायों का हुक्म सामने आ गया या नहीं आया जानवरों, इसको फिका कहते हैं। अब ये इल्लत का इस्तेमाल उन्होंने किया। अब ये भी सारे मानते हैं कि भैंस हलाल है, लेकिन कियास, इसी को तफक्को कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात बनाया। मैंने जो आयत करीमा तलावत की है उसमें फिका का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहे हैं? फलौला नफर मिन कुल्li फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन, कि जो सारे गिरोह जा रहे हैं जिहाद के लिए, इनमें से सब में से एक एक आदमी क्यों नहीं यहां बैठ जाता ताकि फकीह बने, ताकि। अच्छा ये मैं आपसे पूछ लूं कि सहाबा कराम जिनको पहला खिताब इस आयत ने किया है, उनकी मादरी ज़बान पश्तो थी ना जी? अंग्रेजी, अरबी, सरायगी, अरबी थी ना? तो जिसकी मादरी ज़बान अरबी है वो जब कुरान की आयत सुनेगा उसे मतलब समझ आ जाएगा या नहीं? हदीस सुनेगा माना आ जाएगा या नहीं? तो अगर फिका सिर्फ माने जानने का नाम है तो फिर तो सारे फकीह थे। मालूम हुआ फिका सिर्फ माने जानने का नाम नहीं, बुखारी का तर्जमा जानने का नाम फिका नहीं है, कुरान का तर्जमा पढ़ लेने का नाम फिका नहीं है, वो किसी खास गहराई का नाम है। रसूल पाक ने हजरत मुआद रज़ी अल्लाह को यमन भेजा था ना, हजरत मुआद की ज़बान क्या थी? अरबी, और यमन वालों की सरागी। क्या यही थी बात? अंग्रेजी थी, यमन वालों की ज़बान क्या थी? अब देखिए हजरत मुआद जा रहे पूरे सूबा यमन में इज्तिहाद हजरत मुआद करेंगे। हर अरबी दान को भी इज्तिहाद की इजाजत अल्लाह के नबी नहीं दे रहे, और यहां हर सरागी वाला भी कहता है मैं मुजतहिद हो गया।
वो इनकी किताबों की बहुत बड़ी दुकान थी, 10-12 मुलाजिम थे, इनमें एक मुकल्लिद था। तो रोज चोंचे लड़ती रहती। उनके शेखुल हदीस मौलवी अब्दुल्ला साहब को किताब लेने दुकान पर आए तो दूसरे सारे कहने लगे जी ये मुकल्लिद है। उन्हें बड़े हैरान होकर पूछा तू मुकल्लिद है? कि जी हाँ। और क्यों मुकल्लिद है? उसने कहा जी कुरान हदीस अरबी में है, मुझे उर्दू भी नहीं आती, मैं क्या करूं? कुरान हदीस अरबी जुबान में है और मुझे उर्दू भी, मैं तो किसी पर एतमाद ही करूंगा कि ये कुरान का सही तर्जुमा समझा रहा है, तो एतमाद का नाम ही तकलीद है। मैं बगैर तकलीद के क्या कर सकता हूं? उसने कहा सहाबा की तरह अमल करो कि उनकी जुबान अरबी थी, मैं पंजाबी हूं। फिर यह कि हर सहाबी को भी नहीं कहा गया लियतफक्कहू फिद्दीन। तो अब उसने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा फिर तुम किसकी तकलीद करोगे? अब वो भी मेरी तकलीद सुना हुआ था 2-4। उसने कहा मौलाना आप आलिम है, मैं आपकी कर लूंगा। आप आलिम है, मैं आपकी तकलीद कर लूंगा। कहता इस जवाब के बाद 10-15 मिनट खामोशी रही। मैं सोचता था कि शायद कोई हजरत फरमाएंगे, इरशाद, कुछ नहीं फरमाया उन्होंने। फिर मैं ही बोला कि हजरत मैंने अब ये कह दिया है कि आपकी तकलीद कर लूंगा। अगर मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले देता तो ये कुरान बेचारा आधा तो मेरे इमाम पर फिट हो जाना था। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। जितनी यहूदियों वाली आयतें थी सारे मेरे गरीब इमाम पर फिट हो जानी थी। लेकिन अब चूंकि मैंने आपकी तकलीद का वादा कर लिया है तो कुरान में कोई आयत नहीं रही जो आपको यहूदी बनाए, कोई आयत नहीं रही जो आपको यहूदी बनाए। और बाकी जो आता कुरान बचना था वो गरीब मुझ पर बारिश की तरह बरस पड़ना था। शिरक वाली सारी आयतें कि तू मुशरिक हो गया है, तू मुशरिक हो गया। मुझे इस्लाम से बाहर कर देना था कि तू मोहम्मदी नहीं रहा, तू मोहम्मदी। अब मैंने चूंकि आपकी तकलीद का वादा कर लिया है तो कोई आयत नहीं रही जो मुझे मुशरिक बनाए और मुझे मोहम्मदियत से खारिज करे। पता चला कि झगड़ा तकलीद का नहीं है, असल में हसद है कि इमाम अबू हनीफा को सदियां गुजर गई, आज भी दुनिया उनकी तकलीद करती चली जा रही है और हमें कुछ आगे से भी नहीं पूछता कि तुमने क्या किया है। सारे उनका नाम लेते हैं। तो इस हसद के अलावा और कोई बात नजर नहीं आती। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा से फरमाया लियतफक्कहू फिद्दीन कि वो दीन में फकीह बने। वले युनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम याज़रून। वले युनज़िरू, ये नज़ीर होना नबियों की सिफ़त अल्लाह कुरान में बयान करता है और नबियों के बाद उनके वारिस फुक़हा को करार दे दिया है कि अब ये नज़ीर है नबियों के बाद। वले युनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम याज़रून। एक सहाबी पूरी कौम में फकीह बन के चला गया और सारी कौम उनके फिकी मसाइल पर अमल करती थी। इसी का नाम तकलीद है या कुछ और होता है? बल्कि इसी का नाम तकलीद शख्सी है। सारी कौम अपने फकीह की तकलीद करती थी। तो ये फिका के मानने का हुक्म कुरान में है या इमाम अबू हनीफा ने खुद कर लिया था? देखिए, शिरक की बुराई आप बयान करते हैं ना तो कुरान से कि शिरक ना करो। इसी तरह हम फिका के बारे में आयतें पेश करते हैं। मैंने ये आयत पढ़ी, दूसरी का अल्लाह ताला फरमाते फमाल हाउलाइल कौमे ला यकादूना यफ्क़हूना हदीसा। एक बार निकल मौलवी साहब मेरी तकरीर में उपाड़े खड़े हो गए कि जी ये पहले फिका पढ़ाते हैं बाद में हदीस पढ़ाते हैं। मैंने ये आयत पढ़ दी कि यहाँ फिका पहले हदीस बाद में। यफ्क़हूना हदीसा। मैंने कहा तू कुरान को नहीं मानता? उठ के चला गया जूता उठा के। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन यफ्क़हू फी आज़ानिहिम वक़रा। जो फिका को नहीं मानते उनके दिलों पर खुदा ने पर्दे डाल दिए। ये कुरान पाक की आयत पढ़ रहा हूं या इमाम अबू हनीफा का कौल पढ़ रहा हूं?
वक़द फस्सलना आयात लिक़ौमिन यफ़क़हून व तुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून। जिनके दिलों पर मोहर है वो फिक़ह के करीब नहीं जा सकते। तो दिल पर मोहर होना अच्छी बात है या बुरी बात है? वलहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, वो दिल भी बुरा है जिसमें जो फिक़ह को नहीं मानता। ज़ालिक बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून। अब फिक़ह न मानने वाले को कुरान मुनाफिक कह रहा है। मैं पूछता हूं कि हम कुरान की माने या इनकी? ये कहते हैं फिक़ह को न मानने वाले को अहल हदीस कहो। हम कहते हैं फिक़ह को न मानने वाले को कुरान मुनाफिक कहता है। और अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिदिन। एक फकीह शैतान पर 1000 आबिद से ज्यादा सख्त है। तो फिक़ह की मुखालफत करने वाले को अल्लाह के पाक पैगंबर ने क्या फरमाया है? शैतान। क्या फरमाया है? तो नबी की हदीस का लफ्ज बोलते आपको डर लगता है। क्या फरमाया है? शैतान। हाँ, हम गाली नहीं देते। ये जो दोस्त रुके लिख रहे हैं इसमें एक रुका ये भी लेकर भेजे कि हजूर पाक ने फरमाया हो फिक़ह के मुनकर को अहल हदीस कहना, हम सारा आंखों पर रखेंगे। लेकिन अगर ना लेकर भेज सके तो पता चल गया ना कि इनका तो नाम ही सिरे से हदीस में नहीं है। इनका तो नाम ही सिरे से हदीस में नहीं है। तो अब देखिए, मैंने फिक़ह के बारे में कुरान पाक की आयतें पढ़ी, अल्लाह के नबी पाक की हदीसें पढ़ी ना, तो एक आयत मुझे रुके पर लेकर भेज दे, एक आयत सिर्फ, जिसमें फिक़ह का लफ्ज हो कि फिक़ह को ना मानना। एक हदीस अल्लाह के नबी पाक की जिसमें फिक़ह का लफ्ज हो कि फिक़ह को। अब देखिए, कुरान मैं सुना रहा हूं या चलो कोई यही लिख दे कि मैंने इन आयतों को मान लिया है, फिक़ह को मानता हूं और फलां किताब मेरी फिक़ह की है, फलां किताब मेरी। देखो, हनफियों का इन आयतों पर ईमान है ना, उनकी फिक़ह की किताबें मौजूद है दुनिया में या नहीं? शाफियों का ईमान है ना, मालिकियों का, हंबलियों का। अगर ये भी इन आयतों पर ईमान रखते हैं तो हमें अपनी फिक़ह की किताब तो दे कहां। अगर किसी ने लिखी भी दूसरे कहते नहीं मानते, गोया इनकार कर दिया कि हमारी पूरी जमात में कोई फकीह पैदा हुआ ही नहीं आज तक, नहीं होगा इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए। तो अब देखिए, इन्होंने ये 2 आयतें पेश की तो आधी आधी पेश की ना। तकलीद और इत्तिबा में बाज़ औक़ात ये फर्क किया करते हैं। कुहाड़ के मुनाजरे में जब मैंने ये आयत पढ़ी वत्तबि सबील मन अनाबा इलैया, तो 12 मौलवी साहबान बैठे थे, वो बार बार क्या कह रहे थे? हम मुक़ल्लिद नहीं मुत्तबे हैं, हम मुक़ल्लिद नहीं मुत्तबे हैं। अब जो हमारे उलमा बैठे थे वो हैरान थे कि माना तो एक ही है। वो कहने लगे फर्क क्या है? बस हम मुक़ल्लिद नहीं मुत्तबे हैं, हम मुक़ल्लिद नहीं मुत्तबे हैं। ये शोर मचा रहे थे। मैंने कहा, मैंने अपने मौलवी साहब से कहा, मैंने कहा जब ये आपकी ज़ुबान नहीं समझते, मेरी समझेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कहा वो कहते हैं कि हम मुक़ल्लिद नहीं हैं, मुत्तबे हैं, क्योंकि अबू जहल यही कहता था, बल नत्तबिउ मा वजद, बल नुक़ल्लिद नहीं कहता था। अबू जहल भी अपने आप को यही कहता था, मैं मुत्तबे हूं, मैं मुत्तबे हूं, मैं मुत्तबे हूं। कहीं कुरान की आयत पढ़ दे उसने कहा कि मैं मुक़ल्लिद हूं। तो अगर इनको वही बात उसकी पसंद है तो हम क्यों मजबूर करें काम का? ये तो इस्लामी इस तरह है ना कि जिस तरह देखो लफ्ज एक ही है। हमद के माने क्या होता है? नींद तो नहीं आ रही। नाक के माने, मदा के माने
लुगत में तीनों का एक ही माना है, लेकिन उर्फ में इस्तेमाल में फर्क होता है। आपके कभी स्टेज शायरी ने कहा कि ये अल्लाह की नात पढ़ सुनाएगा, रसूल की नात कहते सुनाएगा, यही है ना। ये रसूल की हमद पढ़ेगा, कोई कहता है। हालांकि लुगत में कोई फर्क नहीं। तो तकलीद कहते हैं मुजतहिद की ताबियादारी करने को, उर्फ शरम। इसलिए हम अपने आप को मुकल्लिद कहते हैं, और ये उर्फ मुसलमानों का है, अबू जहल का नहीं है। अगर किसी को मुसलमानों का उर्फ पसंद नहीं तो हम क्यों मजबूर करें काम का। अब देखिए, कुरान पाक पढ़ने का हुक्म है, फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, है या नहीं है हुक्म। तो आप जो कारी हफ्स की रिवायत पढ़ते हैं, कारी हफ्स का नाम भी कुरान हदीस में है, क्यों? कल को इसका जवाब जो मैंने कहा यही होगा, नहीं हम फिका को मानते, फिका हनफी को नहीं मानते, यही कहेंगे ना। हम फिका को मानते हैं, फिका। मैं आपसे पूछता हूं कि एक आदमी ऐलान करे, अल्लाह की कसम मैं हदीस को मानता हूं लेकिन सियासता को बिल्कुल नहीं मानता। हमारे बारे में कहते हैं जी कूफी दीन है, कूफी मजहब है, तो भी फिर सियासता वाले ईरानी दीन नहीं आपका, कहना चाहिए या नहीं? अगर ये कहो कि अगरचे वो ईरान में पैदा हुए लेकिन हदीसें तो अरबी नबी की जमा की ना, तो फिर यहां भी यही कह लो कि इमाम साहब कूफे में हुए, फिका तो किताबों सुन्नत की जमा की ना जो अरबी है। तो कुछ बात ज़हन नशीन हो रही है ना। अब कोई कहे कि फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान तो है, लेकिन कारी हफ्स का नाम दिखाओ। एक कहता है अतीउर रसूल, वो कहता है नहीं अतीउल बुखारी दिखाओ, अतीउल बुखारी दिखाओ, वरना बुखारी ना पेश करना। तो कोई दिखा सकता है? नहीं ना। वो जब मैं कराची में था तो 12-13 आदमी मेरे पास आए, पढ़े लिखे थे, कोई प्रोफेसर, कोई वकील, कोई टीचर, आकर बैठ गए। अब बात करने का अंदाज भी इनका अजीब होता है। बस जी क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें, किधर जाएं? मैंने कहा अल्लाह माफ करे, जो भी बड़ों को छोड़ता है सारी उम्र ही परेशान रहता है। मिर्जा कादियानी बेचारे इसी परेशानी की पैदावार था ना। जो भी बड़ों को छोड़ता है वो सारी उम्र परेशान रहता है। तो मालूम होता है कि आप बड़ों को छोड़े फिर रहे हैं। क्या करें जी? 4 इमाम बन गए, 4। मैंने कहा कहां? यहां कोई शाफियों का मदरसा है, शाफियों का, मालकियों का, हम्बलियों का? मैंने कहा यहां तो एक ही इमाम है, एक ही उसके मसले हैं। वो जो बड़ा महंगा होता है उसको भी 1 के 2 नजर आते हैं, आपको 1 के 4 कहां नजर आए? मुझे दिखाओ तो सही। यानी महंगे को भी 1 के 2 ही नजर आते हैं ना। वो मौलाना रूह नजर लिखते हैं ना कि एक उस्ताद का शागिर्द था, उस्ताद को नहीं पता ये महंगा है, उसने कहा वो दवाई वाली शीशी उठा लो। वो आ गया जी 2 है, वहां कौन सी उठा लो? देखा 2 नहीं 1 है। नहीं जी 2 है। उस्ताद ने गुस्से में कहा अच्छा एक तोड़ दो दूसरी दे आना। उसने पत्थर मारा, वो दोनों टूट गई। कहती यहां नहीं है, कहीं हो गए ना। मैंने कहा फिर वो लोग परेशान हो, आपको यहां बैठे क्या परेशानी हो गई? ये जी क्यों 4 इमाम बने? मैंने कहा मैंने तो एक भी नहीं बनाया, इनमें से पहले ही थे, पहले से थे। आप अगर पढ़े लिखे लोग हैं, कोई फैसला कर लिया होगा। जी हाँ, क्या सबको छोड़ दो? बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन मेरा जल्दी ना करना। जी क्यों? मैंने कहा ये जो कुरान पाक है इसमें 7 कारियों का इख्तिलाफ है, किरात है, 7 किरातें हैं ना। तो 7 का इख्तिलाफ बड़ा होता है या 4 का? तो अल्लाह के बंदे पहले बड़ा काम करना चाहिए कि आज के बाद हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 7 कारी जिनके जरिए कुरान उम्मत को मिला है उनमें इख्तिलाफ है। ठीक है या नहीं? काम भी बड़ा हो, नाम भी बड़ा हो। तो देखो भाई कुरान का भी इनकार हो गया है। फिर बाकी हदीस की किताबें अगर आप ना भी माने, 6 तो मानते हैं ना सियासता, तो इनमें भी आपस में इख्तिलाफी हदीसें मौजूद है।
تو 6 کا اختلاف بڑا ہوتا ہے یا 4 کا جی؟ تو پھر دوسرے نمبر پر 6 والوں کی باری ان کو چھوڑنا چاہیے، بیچارے تیسرے نمبر باری آئے گی ان کی کہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ لکھو کہ ہم اول نمبر پر قرآن چھوڑتے ہیں کیونکہ 7 قاریوں کا اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے۔ پھر سیاستہ چھوڑتے ہیں، اس کے بعد لکھ دیں کہ ہم چاروں امام فقہ کے بھی چھوڑتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پھر ڈوڑگی بجاتے پھر دنیا میں، آپ کے پاس رہے گا کیا؟ لکھا تو نہیں جی۔ کسی حدیث میں آتا ہے کہ 4 میں سے 1 کی تقلید کرنا، 3 کی نہ کرنا؟ دیکھو یہ سوال قرآن سے نہیں ان کو ملا، نہ حدیث سے، شیعوں سے چوری کیا ہوا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ رافضی سوال کرے تو اس کو لوگ رافضی کہتے ہیں، اور یہی ان سے چوری کر کے ہم سے کرے کہتے ہیں یہ اہل حدیث سوال کر رہا ہے۔ میں نے بارہ ان سے پوچھا کہ جب آپ سوال کرتے ہیں آپ اہل حدیث ہوتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ کسی سوال کی بنیاد حدیث نہیں ہوتی۔ یا تو آپ وہ سوال کریں جن کی بنیاد حدیث ہو، یا لکھ دیں کہ ہم سوال کرتے وقت اہل حدیث نہیں ہوتے، کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب وہاں سے چوری کر کے سوال کر دیا۔ میں نے کہا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ میں نے کہا 7 قرأتیں یاد ہے نا؟ 7 کہ نہیں جی 1 ہی یاد ہے۔ تو میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ 1 ہی قرأت پر قرآن پڑھنا، باقی 6 کا نام بھی نہیں یاد کرنا؟ یہ حدیث آپ دکھا دیں اور ان کی ہم دکھا دیتے ہیں کہ جی ہمیں آتی 1 ہے۔ میں نے کہا یہاں مذہب ہی 1 ہے، دوسرا ہے ہی نہیں جی۔ 4 امام برحق ہیں۔ میں نے کہا ہاں 4 برحق ہیں جی، 4 ہی۔ میں نے کہا جی 4 ہی۔ پھر آپ باقی 3 کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہماری مرضی۔ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مرضی ہماری، جو برحق جو ہے۔ میں نے کہا ہے۔ میں نے کہا آپ کے نزدیک کم و بیش 1,24,000 نبی سارے برحق ہیں نا؟ کہ جی ہاں۔ تو میں نے کہا جمعہ آپ پڑھتے ہیں حضور پاک کی تابع داری میں، پھر ہفتوں کو یہودیوں کے یہاں بھی جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہے، وہی بات بھی کر رہے ہیں، جاتے ہیں۔ اتوار کو عیسائیوں کے گرجے میں جاتے ہیں نہ، عیسیٰ علیہ السلام کو برحق نہیں مانتے آپ؟ تو وہاں بھی جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، برحق تو سب کو مانتے ہیں لیکن تابع داری صرف اپنے نبی کے کرتے ہیں۔ وہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یہاں راجع مرجوع کا مسئلہ ہے۔ جیسے منسوخ پر عمل جائز نہیں، مرجوع پر بھی عمل جائز نہیں۔ اب تھوڑا سا سمجھ کے بیٹھے، سوال پھر وہی قرآن حدیث سے نہیں، وہی چوری کیا ہوا کہ اچھا جی دین کتنے ہیں؟ میں نے کہا 1۔ تو 1 دین میں 4 اماموں میں حرام حلال کا اختلاف ہے، حرام حلال کا۔ 1 امام 1 چیز کو حلال کہتا ہے اور 1 حرام کہتا ہے، تو جو حلال کہتا ہے وہ بھی برحق اور جو حرام کہتا ہے وہ بھی برحق۔ عجیب بات ہے۔ میں نے کہا خدا کتنے ہیں؟ کیا پوچھا میں نے؟ جی 1 ہی۔ میں نے کہا 1 ہی خدا کا، 1 نبی کہتا ہے بہن سے نکاح جائز ہے، دوسرا کہتا ہے نج حرام ہے، دونوں برحق ہے یا نہیں؟ میں نے کہا تو اگر برحق مانتا ہے تو بہن سے نکاح کر کے آ جا پھر، تاکہ آدم علیہ السلام بھی برحق ہو جائے نا۔ یوسف علیہ السلام برحق ہے یا نہیں؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو سجدہ کیا، قرآن میں ہے، اور آج حرام ہے یا حلال سجدہ والدین کو؟ جو حلال سمجھتا ہے وہ بھی برحق ہے اور جو حرام کہتا ہے وہ بھی برحق ہے یا نہیں؟ خدا کتنے ہیں؟ آج 2 بہنوں کو ایک وقت پہ نکاح میں اکٹھا کرنا جائز ہے؟ حرام۔ یعقوب علیہ السلام کی بیویاں دونوں سکی بہنیں تھیں، ایک وقت نکاح میں تھی، زلفا اور گلہا۔ اب وہ حلال کہتے تھے، یہ حرام کہتے ہیں، وہ حلال کہنے والا بھی برحق، یہ حرام کہنے والے بھی برحق۔ کہتا ہے جی وہاں زمانے کا اختلاف ہے۔ میں نے کہا یہاں علاقے کا اختلاف، اس علاقے میں شافعی ہے، یہاں حنفی۔
वहां जमाने का इख्तलाफ है, यहाँ इलाके का इख्तलाफ है। देखो हर साल तकरीबन अब तो हो रहा है, सऊदिया वाले ईद पढ़ रहे होते हैं, यहाँ रोजा होता है या नहीं होता है? ईद के दिन रोजा रखना हराम है या नहीं? ऊंची जवाब देंगे। और रोजे के दिन ईद करना, तो जब वो ईद पर आपका रोजा है तो आप उसको हराम कहते हैं, वो आपके रोजे को हराम कहते हैं। वो यही कहते हैं कि वहां चांद साबित हो गया, ईद है, यहाँ साबित नहीं है, यहाँ रोजा है। मुसलमान वो भी है, मुसलमान इलाकों का इख्तलाफ हो गया ना। हाँ, फितना क्या होगा कि यहाँ 4 आदमी डंडे लेके फिर तोड़ो रोजा, आज मक्के शरीफ ईद है, इसको फितना करें। वहां 4 आदमी लाठियां लेके फिरे, आज पाकिस्तान बड़ा इस्लामी मुल्क है, उसमें रोजा है, हम ईद नहीं पढ़ने देंगे, इसका नाम फितना है। शाफियत अपने इलाके में मजहब है, फितना नहीं। हम्बलियत अपने इलाके में मजहब है, फितना नहीं। हनफियत अपने इलाके में मजहब है, फितना नहीं। मालिकियत अपने इलाके में मजहब है, फितना नहीं। गैर मुकल्लिद फितना है, ये मजहब नहीं। तो मजहब और फितने में फर्क समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? अब सोच सोच के मुझे कहते हैं कि अच्छा जी, अल्लाह का दीन मक्के मदीने आया था या कूफे में? कोई हदीस का सवाल है? नहीं, वही शियों से लिया हुआ। मैंने कहा मक्के मदीने में, फिर मक्के मदीने वाला इमाम मानने चाहिए कूफे वाला? देखो कैसे सवाल है, वहीं से चोरी किए हुए। मैंने कहा आपका दिल क्या कहता है, ये मक्के मदीने वाला? मैंने कहा आपको पता है झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है हर दीन में, ये हमने झूठ बोला? मैंने कहा बिल्कुल जी। कैसे? मैंने कहा तो कुरान मक्के में आया मदीने में, और तुम कारी आसम कूफी की किरात पर ये कुरान पढ़ रहे हो। किसकी किरात है? कारी आसम कूफी की किरात और कारी हफ्स कूफी की रिवायत। तुमने तो कुरान में ही मक्के, उन 7 कारियों में मक्की कारी है या नहीं, मदनी कारी है या नहीं, बसरी कारी है या नहीं? तुमने तो कुरान भी मक्का मदीना छोड़ दिया, कूफे वाला कुरान पढ़ते हो। इसलिए मैं कहा करता हूं कि जब कोई गैर मुकल्लिद मिले तो कहो आप कूफियो आ गए हो। क्या कहना है? कूफियो आ गए हो। जो कूफे वाला कुरान पढ़ता है वो कूफी है या नहीं? अब कुछ दिमाग थोड़ा सा ठीक होने लगा। कहते हैं जी वो कुरान कूफे वालों ने गढ़ा तो नहीं ना, मक्के आए थे तो कुरान वहां से लेकर आए थे, कुरान वहां से लेकर आए थे। मैंने कहा जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात हो गई। तो जब मक्का शरीफ से सहाबा चले थे मदीना शरीफ से कूफा के लिए, तो कुरान ले आए थे, नमाज वहीं फेंक आए थे कि चलो कूफे ना जाके नहीं बना लेंगे, या नमाज भी मक्के मदीने से लेकर आ गए थे? क्या ख्याल है आपका? अगर कूफे में कुरान मक्के मदीने से आया है तो नमाज भी मक्के मदीने से आई है। और जिस कूफे में 1050 सहाबा आए हो, वो नमाज कहते सही नहीं। कि सही कहां है? अमृतसर जो गुरु गोविंद सिंह का शहर है, वहां सनाउल्लाह ने लिखी, वो सही है। एक सहाबी भी नहीं आया, गुरु गोविंद सिंह का शहर है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने 55 हज किए हैं। कितने हज किए हैं? 55। अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर के जियारत की तौफीक दे, अपने नबी पाक के रौजा पाक की जियारत की तौफीक दे। रहीम या आखा का रहने वाला आदमी, हम जैसा गुनाहगार, अल्लाह हज की तौफीक दे। तो जब हज करने जाता है वहां नमाजें पढ़ता है या वहां भी नमाजें नहीं पढ़ता? पढ़ता है ना। तो इमाम साहब जब हज के लिए जाते थे मक्के में नमाजें पढ़ते थे या नहीं? मदीने में। अगर इस नमाज में एक बात भी सुन्नत के खिलाफ होती तो एतराज मक्के वाले करते, एतराज मदीने वाले करते। देखो मैं आपके यहाँ आया, मैंने नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सर पर हाथ बांध लिए, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक। आप मुझे रोकेंगे या नहीं जी? एक सुन्नत की मुखालफत हुई है ना। वो मुझे एक दोस्त बताने लगा, जी मैं सफर में था तो मस्जिद के पास बस खड़ी थी, तो मैंने कहा कि चलो नमाज ही पढ़ ले। मैंने कहते नमाज पढ़ी, यहाँ हाथ बांधे
تو ایک بابا بیٹھا تھا، وہ اٹھا، اس نے نماز کے اندر ہی میرے ہاتھ اٹھا کر یہاں رکھ دیے، پھر میں نے اٹھا کر سر پر رکھ لیا۔ تو مجھے بعد میں کہتا ہے یہ کیا؟ میں نے کہا وہ کیا تھا؟ میں تو یہی سمجھا کہ شاید ذرا عرش کے قریب زیادہ ہوگا تو ثواب زیادہ ملے گا۔ وہ میرے شاگرد جو ہوتے ہیں تو میں انہیں سکھاتا رہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح 4-5 چلے جاؤ کرو اپنی مسجد میں۔ بعد میں ایک نے سوال پوچھا، دوسرے نے جواب دیا، تاکہ ایک تو تمہاری جھجک دور ہو بات چیت کرنے کی، ایک لوگ اپنے دلائل سنیں، ان کو تسلی ہو کہ ہمارے پاس دلائل ہے۔ تو کبھی کبھی ان کے ہاں بھی چلے جایا کرو تاکہ ان سے بات چیت ہو، کوئی بات چیت کرنے کا طریقہ ہے، جھجک دور ہو۔ تو ایک دن وہ شکیل احمد لڑکا تھا چنیوٹ کا، ان کی مسجد میں چلا گیا، جماعت ہو چکی تھی۔ تو ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، یہ اس کے پاس بیٹھ گیا جا کے، میرا شاگرد۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوا تو اس نے السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ اللہ، آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، کیا بات ہے؟ کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں کہ نہیں یہی رہتے؟ کیا بات کیا ہے؟ کہ نہیں ویسے میں نے پوچھا کہ نہیں کوئی بات ہوگی، کہ آپ امی والی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے کہا شاید ابا جی نہیں ہے یہاں، آپ امی والی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سمجھا شاید ابا جی نہیں ہے یا کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں، امی سے نماز سیکھی ہے۔ تو بہرحال فقہ کا انکار کرنا قرآن حدیث کے حکم کا انکار ہے۔ اب رہا یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تھے یا نہیں، تو خود قرآن پاک میں 2 آیتوں میں امام صاحب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں سورہ جمعہ کی میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، دیکھیے ویسے سارے کہتے ہیں ہم قرآن حدیث مانتے ہیں، لیکن شاہ فہد کو جب ضرورت پڑی، اسے شوق تھا کہ پوری دنیا میں قرآن کا اردو ترجمہ پھیلایا جائے، حاشیہ پھیلایا جائے، تو اب موقع تھا نا، یہ آ کے اپنے 5 ترجمے رکھتے جا کے کہ دیکھو جی بہت اچھے ترجمے ہیں۔ چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ دوسرے بھی جا کے ترجمے، سب نے ترجمے کیے نا اردو میں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی اس بینچ کے سامنے، اس نے علماء کا بینچ بنایا تھا کہ یہ پہلے چیک کرے گا ترجمہ صحیح ہے یا نہیں، تفسیر صحیح ہے یا نہیں۔ تو پتہ تو اس وقت چلتا ہے نا، اگر کسی نے رکھا تو دیوبندیوں نے رکھا اپنا ترجمہ اور حاشی، اور اسی کو اس بینچ نے پاس کیا، اسی کو شاہ فہد نے چھپوایا، وہی حاجیوں میں تقسیم ہوا، اسی حاشیے پر لکھا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس پیش گوئی کے مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سورہ محمد کی آخری آیت پر بھی اسی تفسیر بھائی وہ جوتا لے کر پہلے حملیوں کو پیٹے نہ جا کر جو وہاں بیٹھے ہیں، ان کے فقہ کو مانتے ہیں نا، جہاں وہاں دیکھیں کہ پیٹتے ہیں، ان کا جو سارا سود اکٹھا کر کے یہاں لے آتے ہیں، پھر دنیا میں ہم ہی یتیم مسکین رہ گئے ہیں جو سود کا پیسہ ہمیں دے دیا کرو، اتنے بڑے جہاں میں کوئی نہیں ہمارا، آخر وہ بھی تو مقلد ہے نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ اب اپنے مذہب کے لیے جو اپنا مذہب لکھ بھی نہیں سکتا اور عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ دیکھیے جامعہ ترمذی شریف ہے، ترجمہ ہے وحید الزمان کے بھائی بدیع الزمان کا، صفحہ 155، اور یہی آپ کے شہر میں یہ ہے، اس میں یہ جو حدیث تھی نبی اقدس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس شخص نے بھی کوئی ایک رکعت نماز پڑھی
حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری حدثنا مان عن مالک عن ابی نعیم وهب بن کیسان سامع جابر بن عبداللہ یقول من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی رکعت نماز کی پڑھی اس میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، ہاں امام کے پیچھے ہو تو نہ پڑھے۔ اور یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہ اس ترمذی شریف سے پوری نکال دی ہے عربی متن سے، جو غیر مقلدہ نے شائع کی ہے اس میں سے اس کی ساری عربی عبارت ہی نکال دی ہے۔ آج تک بڑے بڑے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی خیانتیں، اچھا وہ مولانا روم رحمۃ اللہ نے عجیب واقعہ لکھا ہے کہ کہیں چور نے نقل لگائی، چوروں نے وہ آواز آئی آج سے لوگ اٹھ بیٹھے، اب چور بھاگے تو ایک آدمی بالکل جو چور تھا اس کے بالکل قریب پہنچ گیا، پکڑنے والا تھا کہ دوسرا چور اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے کہا بات سنو، عقل کی بات کرو اور میں تمہیں بتاؤں چور کیسے پکڑا جاتا ہے۔ اس کو واپس لے آیا کہ یہاں سے آپ اس کے پیروں کے نشان دیکھتے جاؤ، گنتے جاؤ۔ وہ اس کے پاس سے کھینچ کر لے آیا۔ اسی طرح ایک دفعہ ہمارے یہاں ہوا گاؤں میں، شور مچ گیا، چور چور چور، اور چور بھی آدمی کھڑے چور 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 کر رہے ہیں، اور لوگ ادھر کو بھاگا تھا، ادھر کو سارے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا اللہ کے بندو سارے ادھر بھاگ رہے ہو، دوسری طرف بھی گاؤں کو دیکھو، دیکھا وہ چور دوسری طرف لگے ہوئے، گاؤں میں تو ادھر بھاگ گئے سارے، اور شور مچاتے ہیں کہ حنفیوں نے تبدیلی کر دی، حنفیوں نے تبدیلی کر دی۔ اسی کیسٹ میں سن رہا تھا جی ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث نہیں تھی، 5-6 سال پہلے مصنف ابن ابی شیبہ کراچی سے شائع ہوئی اور انہوں نے اس میں اپنی طرف سے لفظ لکھ لیا تحت السرہ، جو کسی کلمی نسخے میں موجود نہیں ہے، 5-6 سال پہلے۔ حالانکہ یہ بحث حیات سندھی اور شاہ قاسم سندھی کے درمیان چلی تھی، تو 1126 5 سال پہلے کی بات ہے یا 200 سال پہلے کی بات ہے، 1126 میں وہ نسخہ دکھایا گیا تھا کہ دیکھو تحت السرہ موجود ہے۔ اب چونکہ اس کے راوی کو یہ نہیں بتا سکتے، ضعیف نہیں کہہ سکتے کسی کو، اس لیے حدیث نہیں ماننی، تو کہتے جی حنفیوں نے خود لکھ لی، جی حنفیوں نے خود لکھ لی۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے، ترمذی شریف سے حاتثہ کی کتاب ہے، اس میں سے یہ سارا عربی متن نکال دیا، اور شور مچاتے رہے گے دوسروں کے آگے کہ جی حنفی کتابوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈر کی آگے گادی دری سے جب میں گیا تھا، گادی دری میں جب گیا تو افضل حق غیر مقلد تھا، وہ کتابیں لے کر گنڈی باندھ کے آ کے بیٹھ گیا کہ میں سوال جواب کروں گا۔ پیچھے دیکھو، پیچھے نہ بیٹھو، میرے پاس آ کر بیٹھو، تم اپنے پھر رسالہ کتاب دو، میں اس کا جواب دوں گا، تم دیکھتے رہنا، جہاں سے میں چھوڑ دوں شور مچا دینا کہ چھوڑ دیا، جواب نہیں دیا، تو بیٹھ گیا۔ یہی حدیث جب آئی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، پوری حدیث یہی ہے کہ جس نے فاتحہ اور کچھ اور حصہ قرآن کا نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ پوری حدیث سنائی جائے تو اس میں مقتدی کا ذکر داخل کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان پڑھ سے ان پڑھ بھی سمجھے گا کہ یہ حدیث اس کے بارے میں ہے جس نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورت بھی پڑھنی ہے۔ جس پر فاتحہ بھی واجب ہے، سورت بھی واجب ہے،
اور مقدی پر صورت کسی کے ہاں بھی واجب نہیں۔ تو میں نے بتایا کہ پہلے تو کہنے لگے یہ حدیث ضعیف ہے، جب کوئی اس کا راوی ضعیف نہ نکلا تو پھر عجیب تعویل کی۔ کیا تعویل کی؟ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو چوتھائی دینار چوری کرے، چوتھائی دینار یا اس سے زائد، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ چوتھائی دینار چوری کرے یا اس سے زائد، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب قیاس کیا کیا کہ ہاتھ کاٹنے کے لیے چوتھائی دینار تو ضروری ہے، زائد ضروری نہیں، اس لیے فاتحہ ضروری ہے، زائد ضروری نہیں۔ اس پر بڑے خوش اس قیاس پر۔ جب ہم نے جواب دیا کہ بھائی تم تو کہتے ہو کہ پھر فاتحہ سورت ضروری نہیں، فاتحہ بھی ضروری نہیں رہی، وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ ہاتھ کاٹنے کے لیے ربع دینار بھی ضروری نہیں، اس کی مالیت کی کوئی چیز لے آؤ تو ہاتھ کاٹ جائے گا، چوری کر لے۔ بات سمجھا رہی ہے نہیں؟ ربع دینار، اس کی قیمت کی کوئی چیز بھی چوری کرے تو حدیث کہتی ہے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ ربع دینار بھی ضروری نہیں، اس کی مقدار ضروری ہے۔ تو پتہ چلا کہ فاتحہ بھی ضروری نہیں، اس کی مقدار ضروری ہے۔ اب اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا تو صحیح مسلم شریف کراچی سے شائع کی، اردو ترجمہ اسی طرح عربی اردو، عربی سے بھی فسادن نکال دیا، اردو سے بھی نکال دیا۔ اس عبدالحق کے پاس وہ مسلم شریف تھی، وہی ہمارے پاس عربی تھی، اس نے وہ کھولی، کھول کے دیکھا کہ واقعی لفظ نکال دیا ہوا ہے۔ اب وہ آیا تھا مجھ سے مناظرہ کرنے، لیکن آج وہ غیر مقلدوں کے خلاف وہاں علاقے کا سب سے بڑا مناظر ہے۔ اس نے میرے رسالوں کے سندھی ترجمے بھی کیے غیر مقلدوں کے خلاف۔ کہنے کہ اتنی بڑی بے ایمانی، اتنا بڑا دھوکہ۔ تو بھائی اس قسم کے دھوکے وہی لوگ کرتے ہیں جو دلیل نہیں رکھتے۔ وہ آپ نے مثال تو سنی ہے، تھوتھا چنا باجے گنا، تھوتھا چنا باجے گنا۔ تو جتنے یہ دلائل سے کمزور اور خالی ہیں اتنے ہی شور زیادہ مچاتے ہیں۔ اور جھوٹ تو گویا عبادت سمجھ کر بولتے ہیں۔ میں پچھلی دفعہ بھی آیا تھا تو یہ بات سنی تھی، آج بھی ان کے مدرسے کے ایک مدرس مجھے سنا رہے تھے کہ آج سے چند سال پہلے امین یہاں آیا تھا، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے گیا تھا کہ میں ہار گیا ہوں۔ آخر وہ میری تحریر کسی کے پاس ہوگی، حالانکہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو حدیثیں میں نے اس وقت مانگی تھی وہ آج تک بھی پیش نہیں کر سکے۔ یہ نماز میں اتحیات آخری تشہد میں آہستہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ پڑھتے ہیں نا؟ اس کی حدیث مانگی تھی ہم سے کہ نماز میں درود شریف آہستہ پڑھنا چاہیے، درود شریف آپ بھی بھیج دیں۔ جو آج تک منہ چھپائے پھر رہے ہیں، حدیث نہیں لا سکے، تو جھوٹ کب تک چلے گا؟ اب میں جو عرض کر رہا تھا، سائی وال بھی اسی طرح میں ترتیب سے تقریر کر کے آیا تھا کہ بھی جو آپ کا عمل ہے وہ حدیث سے ثابت کر دے۔ 5 مولوی آئے ایک دوسرے کے بعد، دیکھو جی کہتا ہے اہل حدیثوں کی نماز حدیث سے ثابت نہیں، کہتا ہے اہل حدیثوں کی نماز حدیث سے ثابت نہیں، اور کن کی ثابت ہوگی؟ اور کن کی ثابت ہوگی؟ ہماری نماز حدیث سے ثابت ہے، ہماری نماز حدیث سے ثابت ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسی ہی نماز پڑھو۔ اب بار بار کہتا کیوں بھائی؟ حضور پاک نے اس آدمی کو نماز سکھائی تھی نا جو اچھی طرح نہیں پڑھتا، سکھائی تھی نا؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی سکھائی تھی، سکھائی تھی نا کہ جی سکھائی تھی۔
अब ये बार बार पूछता है, लेकिन उसमें उस हदीस को पढ़ के नहीं सुनाता, क्योंकि उसमें न सीने पर हाथ बांधना है, न उसमें आमीन है, न उसमें फातिहा है, न उसमें रफ़ा यदैन है। वो जो नमाज सिखाई थी उससे गैर मुक़ल्लिदों का सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब लोगों को क्या कहता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया था इराक फितनों का घर है, इराक फितनों का घर है, से बचना बचना बचना। मैं आपसे पूछता हूं, सहाबा नबी पाक की बात मानते थे या नहीं? अगर हजरत ने इराक को फितनों का घर फरमाया था तो सबसे ज्यादा सहाबा इराक में आबाद क्यों हुए आकर? बाकी शहरों में चंद गिनती के पहुंचे हैं। कूफा में 1050, बसरा में कितने सहाबा? अब पहली तो तकरीर 10 मिनट यही है, इराक दारुल निफाक, इराक में एक भी आदमी काम का नहीं था, ये वो। और आकर में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में इस्लाम अहल हदीसों ने फैलाया। किस अहल हदीस ने? मोहम्मद बिन कासिम ने, क्योंकि वो इराक से आया था या मक्के मदीने से आया था? वो बसरा से आया था ना, बसरा इराक में है ना। अब अंदाजा लगाओ, पहले तो तकरीर की कि इराक फितनों का घर, इराक फितनों का घर। अल्लाह के नबी पाक ने बड़ा रोका सहाबा को वहां न जाना, बचना फितनों से, लेकिन फिर भी तारीख बताती है कि सबसे ज्यादा सहाबा यही आबाद हो गया। और उसके बाद कहता है अहले हदीस मक्के मदीने से आए। नाम किसका लिया? मोहम्मद बिन कासिम का। अब कौन कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम मक्के से आया था? वो तो इराक से आया था, इराकी सीटा को मानता था। अगरचे अगर किताबी शक्ल में नहीं आई थी, लेकिन लिखा है कि वो सफर में साथ रुई भिगो कर लाए थे, किस सिरके में? जो शराब से बनाया गया था। शराब से सिरका बनाना फिका इराकी का मसला है, साफ तौर पर लिखा हुआ है नुज़्रतुल ख़वातिर में कि वो रुई साथ उठा कर लाए थे। अब उधर जोर है कि इराक दारुल निफाक है, इधर ये है कि इराक वाले अहल हदीस है। तो फितना यही हुआ या और कोई हुए? अभी आपकी चिट्ठें भी देखो ना, काफी करके आए हैं। ये तो है कि आप कहते हैं जब इमाम क़िरात कर रहा तो आप न पढ़े। सवाल ये है कि ज़ोहर असर की नमाज का जवाब तो दे दिया कि इमाम क़िरात तो ज़ोहर असर में भी करता है ना, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन वइज़ा ज़ुहिरल क़ुरआन नहीं। क्या अपनी गैर मुक़ल्लिद अपनी मुकम्मल नमाज हदीस से साबित कर सकते हैं? आज तक तो कोई पैदा नहीं हुआ और ना क़यामत तक पैदा होगा। सहाबा और हजरत उमर से रफ़ा यदैन कितनी जगह साबित है? जो कि अरकान नमाज, अच्छा, हजरत सहाबा में से किसी से भी गैर मुक़ल्लिदों वाली रफ़ा यदैन साबित नहीं। जो कि अरकान नमाज से किसी को छोड़े उसकी नमाज नहीं होगी। फातिहा रुकन नमाज है, ये अल्लाह रसूल का इरशाद नहीं है, गैर मुक़ल्लिदों की अपनी राय की बात है कि ये रुकन नमाज है। गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि बहस की अलग सूरत मायदा में है, वो हमें दिखाए ना, कहाँ बहस लिखा हुआ है वहां। एक मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तकबीर जो कहते हैं, इकामत आदि कहते हैं, तो इसके लिए खलीफा राशिद की बात ही काफी है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की पहली जिल्द में है। उन्होंने एक शख्स को देखा कि वो इकारी इकामत कही तो फरमाया ला उम्म लक, तेरी मां मर जाए। क्या कहा? तो आप भी इनको यही कह दिया करें। खलीफा राशिद की सुन्नत पर अमल करना सवाब है ना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मसलक क्या था? वो हम्बली मसलक थे। हुनियत तालिबिन में लिखते हैं काला इमामुना अहमद इब्न हम्बल अमातन अल्लाह वला मज़हबही व हशरना फी ज़ुमरतिही। अल्लाह मुझे अहमद बिन हम्बल के मज़हब पर मौत दे और उसी के जुमरा में इकट्ठा करे, उठाए। इमाम अबू हनीफा ने कोई किताब लिखी है, जबकि हिदाया कदूरी फतावा का लिखा दुर्र बहते जनोग्राफी का मशहूर को तो बाद औकात इन को तो पर हम भी अमल नहीं करते। इस सवाल का मकसद क्या है?
अबू बकर सिद्दीक ने कोई किताब लिखी है जी? उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने, हजरत अली ने, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इमाम साहब की किताब अकायद की फिक़ह का अकबर आज भी मौजूद है और उनकी लिखवाई ही किताबें काजी अबू ईश्वर मोहम्मद की आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ये कहते हैं कि फिक़ह के बाद मसाइल पर हम भी अमल नहीं करते, तो फिक़ह के जो मसाइल मुफ्ता भी हैं उन पर ही अमल होता है। जैसे कुरान वही पढ़ा जाता है जो मुतवातिर है, शाज़ किरातों की तिलावत कोई भी नहीं करता। ईदैन की नमाज में 7 तकबीरें, ये 8 तकबीरें, ये रिवायत लिखी है, ना सहाबी का नाम ना कुछ। सलात रसूल सादक सियालकोटी ने इस हदीस को नकल किया है, उसके हाशिए पर अब्दुल रऊफ गैर मुकल्लद ने कह दिया कि यह हदीस सही नहीं है, ये हदीस सही नहीं है। बड़ा फिक्र है बेचारों को ईसा अलैहिस्सलाम का। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो भी हनफी मसलक की पैरवी करेंगे। मुकदमा दुर्रे मुख्तार सफा 56। क्या ये वाकया सही है? जरा रोशनी डालो मेहरबानी। वहां दुर्रे मुख्तार में बकायदा इसकी वजाहत है आगे, उसके तर्जुमे में शामिल में भी। देखो पहले मसला सुनो, गालिब ने पिछले दफे बता के गया था, जो सवाल का जवाब हो जाए दोबारा नया सवाल दिया करो। इसके लिए पीली कैसे सुन लिया करो कि इज्तिहादी मसाइल में मुज्तहिद पर इज्तिहाद वाजिब है, मुज्तहिद पर, गैर मुज्तहिद पर तकलीद वाजिब है, गैर मुकल्लिद पर ताज़ीर वाजिब है, गैर मुकल्लिद पर ताज़ीर वाजिब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद मुज्तहिद होंगे, उन पर इज्तिहाद वाजिब है। अलबत्ता हदीस से इशारतन और 6 बुजुर्गों के कशफ से इबारतन ये बात सामने आ रही है कि उनके इज्तिहादात मज़हब हनफी के मुआफिक होंगे। हदीस कौन सी है जिसमें इशारा है? सुनन नसाई शरीफ किताबुल जिहाद में है, बाब ग़ज़वतुल हिंद। उसमें अल्लाह के नबी पाक का इरशाद है कि 2 जमातें अल्लाह ने उनको दोज़ख से आजाद कर दिया। कौन सी? एक वो जो हिंदुस्तान को फतह करेगी और एक वो जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होकर जिहाद करेगी। हिंदुस्तान के फातेह यकीनन हनफी है, हिंदुस्तान के फातेह यकीनन हनफी है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। मुस्नद अहमद में बिल्कुल और वाज़ेह है कि सिंध के बाद हिंद का लफ्ज़ है, तो सिंध के बाद का जो हिंद का इलाका है ये गजनवियों ने, मुगलिया खानदान ने, इन्होंने फतह किया ना, ये सारे के सारे कट्टर हनफी थे। तो जब हदीस में इनको मिलाकर जिक्र किया तो इनका मसलक मिलता जुलता ही होगा। इसके अलावा ख्वाजा मोहम्मद पारसा, अब्दुल वहाब शेरानी शाफी, ज़ियादुल सयूती, मुजद्दिद अल-अफ़सानी, इन हजरात ने कशफ में देखा जैसे आप ख्वाब में बाज़ औक़ात आइंदा वाले हालात देख लेते हैं। ख्वाब में कशफ में देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो नमाज पढ़ रहे हैं वो हनफी मज़हब के मुताबिक पढ़ रहे हैं, तो पता चला कि उनके इज्तिहादात हनफी मज़हब के मुताबिक होंगे। ये तो था हमारी तरफ से जवाब। अब इन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम रखा हदियतुल महदी, वहीदुज़्ज़मान ने। कहता मैंने इसलिए लिखी कि जब इमाम महदी आएंगे तो वो इसको नाफिज करेंगे, इसको नाफिज करेंगे। इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम एक ही वक्त में आएंगे ना। अब उसमें क्या लिखा है सफा 85 पर कि हम पर वाजिब है कि रामचंद्र को नबी माने, कृष्ण जी महाराज को नबी माने, महात्मा बुद्ध को नबी माने, वाजिब है हम पर। भाई एक बात आपसे पूछता हूं, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं ना, तो अपनी औलाद का नाम इब्राहिम रखते हैं ना?
यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, अपनी औलाद के नाम नबियों पर नामों पर रखते हैं या नहीं? तो जब इनका नबी रामचंद्र है तो इनके कितने इमाम मस्जिदों का नाम यहां रामचंद्र है? अभी रखेंगे। अच्छा, कितनों का नाम कृष्ण जी महाराज है? अब दुख इनको यही है कि रामचंद्र को नबी हम मानते रहे, इंदिरा गांधी क्यों देवबंद चली गई थी हमारी? वो भी रामचंद्र को मानती थी ना, इसलिए बेचारे पीट रहे आज तक कि रामचंद्र को नबी हम माने, कृष्ण को नबी हम माने और इंदिरा गांधी